Today we are starting with the chapter binomial distribution, weightage 3 to 4 marks, and maths 1, part of the maths 1. The last lecture we have seen probability distribution, and we have completed 7.1 exercise. We have completed 7.2 baki rakha hai, which is based on definite integration. Now we are moving on to chapter number 8, binomial distribution by nomial. Binomial, let us have some. Binomial distribution means bi means two, nomial means variable. जिसके दो वेरिएबल है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास दो वेरिएबल है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज binomial distribution. So by knowing two variable, we can have fair idea about the distribution. By knowing two variables, we can have the fair idea of the distribution. That is why it is called as binomial distribution, which is denoted by b and comma p. B stands for binomial distribution, and which has two parameters n and p. Now where it is used, this is nothing but it is the part of probability. So when number of attempts, when number of trials, number of attempts are small and finite, when number of attempts, listen to me very carefully, number of attempts are low and finite, we have to use to find probability. To find probability, we use binomial distribution. For example, if I give you some condition, if I toss a coin 6 times and I want to know the probability of getting 4 heads, then this question can be answered with the help of binomial distribution. If I roll a dice or throw a dice 4 times, I want to find probability of getting sum of number as 6. This can be answered by using binomial distribution, where the number of trials or where the number of attempts are small and finite. To find the probability, we have to use this binomial distribution. In actual practice, it is used in statistics to find the probability of certain areas, like आर्मी में यूज होता है ये, लॉजिस्टिक में यूज होता है ये, बहुत सारी जगह पे इसके एप्लीकेशंस है binomial distributions. Now moving on to binomial distribution has the formula based on combination P of capital X is equal to small x, capital X is equal to small x. Formula is NCX P raised to X Q raised to N minus X. NCX P raised to X into Q raised to N minus X. Now where, what is that? N is number of trials. Write it down, number of trials. X, this is to be found out. क्या जो भी फाइंड करने का रहेगा वो सब x को दे देने का नंबर्स. P will be probability of success. Q will be probability of failure, and which can also be written as 1 minus P. Okay, next concept is mean. Mean of binomial distribution is equal to N into P. Then variance of binomial distribution is N into P into Q. Next is standard deviation of binomial distribution of root of N into P into Q. Okay, these are the all formulas which we are going to solve in this chapter. What is success? जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो सक्सेस होगा, जो अपने को चाहिए वो सक्सेस है, और जो नहीं चाहिए वो है फेल्यूर. तो अगर सक्सेस का चांस मालूम है तो वी कैन फाइंड आउट दी फेल्यूर प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके बोर्ड्स में 12 बोर्ड्स में परसेंटेज आने के चांस है 80% आने के चांस है 80, तो 80% नहीं आने के चांस कितने हो गए? What will be the chance of not scoring 80?
20 will be 20%. So ये फेल्यूर हो गया. अगर हेड आने का चांस 50% है तो टेल आने का चांस भी 50% हो गया. So this we can find out by 1 minus p. Total of the probability is always 100. That is the sure event, and the least chance is 0. That is बोलते हैं ना फिक्स्ड इवेंट, जिसका कोई गारंटी नहीं है, आएगा ही नहीं, 0 चांस है प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 100. मतलब 0 to 1, 1 के ऊपर कभी प्रोबेबिलिटी जाएगी नहीं, 0 के नीचे कभी प्रोबेबिलिटी जाएगी नहीं. ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. Write it down all the formulas, and this is the concept of chapter number 8, binomial distribution. इजी चैप्टर है और कैलकुलेशंस है. मैं आपको कैलकुलेशन तक दिखाऊंगा 2 सम, उसके बाद आपको कैलकुलेशन खुद से करने हैं बाकी के सम्स के. डन. चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. ध्यान से सुनना, पहले 2 क्वेश्चन में आपके सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, और कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम. A die is thrown 6 times. कितने बार थ्रू गया? 6 times. So n is equal to 6. If getting an odd number is a success, getting an odd number आने का चांस है 1/2. तो odd number नहीं आने का चांस 1 minus p, 1 minus 1/2, which is also 1/2. Find the probability. To find the probability that we get 5 success. Second, at least 5 success. Third, at most 5 success. चलो ये समझ में आ गया. क्वेश्चन में क्या दिया था? पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया था 6. A dice is thrown 6 times, n is equal to 6. उसने क्लियर बोला है गेटिंग एन ऑड नंबर. गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस. सक्सेस को हम p से डिनोट करते हैं. और अगर एक डाई थ्रो करूंगा तो या तो नंबर ऑड आएगा या तो नंबर इवन आएगा. तो ऑड आने का चांस 50%, इवन आने का चांस 50%. n आ गया, p आ गया, q आ गया. यहाँ से अपने को x मिलेगा. 5 सक्सेस. तो पहला कंडीशन, we know that the p of x is equal to x. फॉर्मूला है n c x p raised to x q raised to n minus x. Okay, now first thing is to solve for 5 success. That is x is equal to 5. तो भी क्वेश्चन में पूछा है वो अपना x होगा. x is equal to 5. so p of स्मॉल x को रिप्लेस करेंगे 5 से, स्मॉल x को रिप्लेस करेंगे 5 से. n is given as 6. c is combination 6c5. p is half raised to 5. q is half raised to 6 minus 5. 6c5 will be 1. अगर नहीं समझ में आया तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 1 upon 2 raised to 5. 1 upon 2 raised to 1. 5 4 3 2. 5 4 3 2 गया, बचा 6. 1 upon 2, ये 5 और ये 1 हो जाएगा, पावर ऐड होके हो जाएगा 6. 6 into 1 upon 64. ये कट हुआ 3, ये कट हुआ 32. So 3/32 will be your answer.
क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, पूछो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ विल सॉल्व सेकंड पार्ट। ये आप लिख लो। सॉरी, we'll start second part. If any question, any doubt, please ask. Let me know if it is done. Let me know. हो जाएगा तो बोलो। Everyone. Done, sir. Done. Yes, sir. Okay. चलो. Now we are moving on to the question number first का second part. At least 5. At least का मीनिंग हो गया कम से कम 5 आने चाहिए। और उसने डाइस थ्रो किया है 6 बार, मतलब कम से कम 5, that is at least 5. Now we are having two cases. At least 5, that means it will be 5 or 6, because 6 से ज्यादा तो पॉसिबल हो नहीं सकते. So there are two cases possible. At least 5 में 5 या 6. So there are two chances. So we write here at least 5, that is x greater than 5. So P of x is equal to x greater than 5 can be written as it will be either 5 or it will be either 6. 5 और 6 को ऐड कर दो. Now apply the formula n c x. सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. n का वैल्यू है 6. Sir, c, हाँ बोलो. तो वो x greater than equal to 5 होगा ना? Equal to 5. p is half raised to 5 into half raised to 6 minus 5 में लिख रहा हूँ 1 plus 6c6 half raised to 6 half raised to 6 minus 6 लिख रहा हूँ 0. 65 का आंसर 6. 1/2 5 plus 1 6. 66 का आंसर 1 into 1/2 का पावर 6. दोनों में से 1/2 का पावर 6 कॉमन निकाल लिया. यहाँ पे बचेगा 6 plus 1. 1/64 into 6 plus 1 7. Answer will be 7/64. Easy. कुछ भी क्वेश्चन आता है दिमाग में प्लीज आस्क. कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में आता है प्लीज आस्क. सर, हाँ सर जो अभी जो नेक्स्ट है वो एटमॉस 5 सक्सेस वाला. हाँ सर उसमें इसको 1 - 7/64 कर सकते हैं. कर सकते हैं. पर उसमें जो 5 वाला रिपीट नहीं हो जाएगा? नहीं बताता हूँ मैं, रुक वेट कर. चलो आगे बढ़ते हैं. एटमोस्ट 5. नाउ एटलीस्ट से चेंज होके हो जाएगा एटमोस्ट 5, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5. अभी समझना ध्यान से. एटमोस्ट 5 5 या 5 से कम. सो यू कैन राइट, चालू होगा 0 से. 0 1 2 3 4 एंड 5. इतना सारा करने से अच्छा अपने को मालूम है टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. 1 minus p of x equals to 6. ऐसा भी कर सकते हो आप. ये समझा क्या? देखो आपके पास टोटल 6 इवेंट है. टोटल 6 इवेंट 6 बार आपने डाइस थ्रो किया. उसने मतलब 5 एटमोस्ट 5 होने चाहिए. 5 या 5 से कम.
तो 5 से कम में कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने इवेंट आएंगे। अभी सबको प्रोबेबिलिटी लगा के ऐड करने में बहुत टाइम जाएगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। टोटल तो 6 है और सबका टोटल मारेंगे, तो मैंने बोला था हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। तो क्या करेंगे? 1 से बाकी के नंबर जो है, बाकी के कौन से नंबर बचे? 6 नंबर। अब एक बात समझना, और एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये समझ लो, ये सबको अगर मैं ऐड करूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो आंसर कितना आएगा? 1। अभी अपने को इतना तो आंसर चाहिए, तो ये p ऑफ 6 को उधर घुमा दो, तो क्या आएगा? 1 माइनस p ऑफ 6। समझ में आ रहा है? वही करना है अपने को। सो यू कैन राइट हियर 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 6। 1 माइनस ncx p raised to, it is half raised to 6 and half raised to 0. Getting it? 1 minus 6 is 1. 1 by 2 raised to 6 into anything raised to 0 is also 1. 1 minus 1 by 64. So it will be 63 by 64. This is important step. सर स्टेप वापस समझाओ ना, जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिखे। ये जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है? टोटल 6 इवेंट है, टोटल 6 इवेंट है, मतलब आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर, और इसका ये x का वैल्यू है, पी एक्स का वैल्यू है। और जब आप इसका टोटल मारोगे ना, आपको हमेशा टोटल 1 आता है। अभी आपको पूछा है कि ये बच्चों का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? We have been asked this probability from 0 to 5. So ये सबको ऐड करने से अलावा what we can do, we can 1 minus the remaining probability, we will get all this, because total is always equals to 1. So ये फॉरवर्ड तरीके से जाने से अच्छा हम क्या करेंगे? 1 से बाकी का जो रेस्ट ऑफ द टोटल है वो माइनस कर देंगे। तो रेस्ट ऑफ द टोटल कौन सा बचा? 6 ही बचा। तो 1 minus probability of 6 will give you probability of all this. Okay. Getting it? Okay. Yes. एटलीस्ट में हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, एटलीस्ट में हमेशा हम ऐसे ही करेंगे। So this is end of question number 1. We are moving to question number 2. A pair of dice is thrown 4 times. N is equal to 4. Question number 2 मैंने चालू किया। N is equal to 4. It is getting a doublet is considered as a success. Doublet कितनी बार आता है? Doublet मतलब 1 1 2 2 3 3 6 बार 6 बार, और टोटल आएगा 36 बार। तो आंसर आएगा 6 by 36, that is 1 by 6. 4 बार फिक्र से ज्यादा आएगा सर। नहीं बराबर है, डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 पर आएगा, 6 by 36 बराबर है। 1 minus p, 1 minus 1 by 6 is 5 by 6। कंफ्यूजन क्यों कर रहा है पापा? राइट बोला है तू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। टू फाइंड, टू एकदम सिंपल दे दिया, 2 सक्सेस। एक ही चीज पूछा है, 2 सक्सेस, दैट इज x is equal to 2, p of x is equal to 2 is equal to, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p of x is equal to small x n c x p raised to x q raised to n minus x। है इजी? क्या क्वेश्चन है तुरंत पूछेंगे आप लोग, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत पूछेंगे प्लीज। So we can write here NCX, N is 4, C2, 1 by 6 raised to 2, sorry, and 5 by 6 raised to 4 minus 2 again 2. 4 minus 2 is again 2. 4 into 3, 2 into 1. 1 by 36, 25 by 36. ये और ये कट हुआ 2,
ये कट हुआ 18 और ये कट हुआ 6. 25/216 will be the answer. Please ask the question. हो गया? Sir, हाँ, okay. Bye. Question number 3. Question number 3. There are 5% of defective item in a large bulk of items. कितने परसेंट डिफेक्टिव है? 5% डिफेक्टिव है. Find what is the probability that sample of 10 items, sample of 10 मतलब n is equal to 10, will include not more than one defective. Not more than one defective. बराबर. अभी उसने बोला है डिफेक्टिव आने का चांस 5% है. 5% is 5/100, that is 0.05 लिख सकते हैं या 5/100 ही रखो. तो Q is equal to 1 minus P. 1 minus 5/100 will be 95/100. Getting it? Now again the same formula, we know that P of x is equal to x n c x p raised to x q raised to n minus x. डिफेक्टिव पूछा था तो कितने नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव. नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव क्या होता है? नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव मीन्स व्हाट? x का वैल्यू कितना? That is x less than or equal to 1. Getting it? X less than or equal to 1, not more than 1. Less than or equal to 1. एक से ज्यादा नहीं, मतलब 0 डिफेक्टिव चलेगा, एक डिफेक्टिव भी चलेगा, बट एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं चलेंगे. x less than equal to 1. So we have two chances, that is 0 defective will also do, and if it is 1 defective it will also do. So कितनी बार है? 10 बार. 10 C0 P 5/100 raised to 0 and 95/100 raised to 10 plus 10 C1 5/100 raised to 1 and 95/100 raised to 9. 10 minus 1 will be 9. 10 C0 is 1. अच्छा 95/100 raised to 9 को मैं कॉमन निकाल दिया. 10 C0 1, anything raised to 0 1, यहाँ पे बचा 95/100. 10 C1 will be 10 into 5/100. ये 9 तो कॉमन निकल चुका है. Okay, so this will be 95/100 का power 9, that is 95/100 plus 50/100. कट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के. 95/100 का power 9, 95 plus 41, 45/100. अभी इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो या आप ऐसे भी रखा तो भी चलेगा. लॉग टेबल से सॉल्व करने का कब? जब अपने पास टाइम बचेगा. यू कैन सॉल्व फर्दर बाय यूजिंग लॉग टेबल. पावर को आगे लेके मल्टीप्लाई करो
लॉग से वैल्यू निकालो, यू विल गेट द आंसर। एंड इफ नॉट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, पेपर आपका छूटने का चांस है या छूट जा सकता है, आपको इसको इधर भी छोड़ दो चलेगा, आधा मार्क कटेगा आपका। जगह छोड़ के भी आप आगे बढ़ोगे तो भी चलेगा, बाद में जब टाइम मिला तब इसको आगे सॉल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज इसमें है पी क्यू और एक्स का वैल्यू ढूंढना, दैट्स इट। बाकी तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लगाना है बार बार, दैट वी कैन इजीली मेक इट आउट। सर आपका लॉग से करना जरूरी है? डायरेक्ट करने में कैसे आएगा? 95 का पावर 9 कैसे आएगा अगर आपको? इधर ही छोड़ दिया तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे? नहीं 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 नहीं, फुल नहीं मिलेंगे। आगे आधा solve अगर करना पड़ेगा। आगे करना, कब मैं नहीं मिलेंगे वो भी बताता हूँ। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा लिखा है आपने, मतलब आपको 80 मार्क में से 78 79 मिल रहा है, तो फिर आपको ये मार्क काट देंगे। अगर आपको 78 79 80 नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है। मेरा तो यही मानना है कि आपके पास टाइम होगा ना तभी इसको आगे सॉल्व करने का। आपके पास टाइम नहीं है ना, तो इसको जगह छोड़ देने के, थोड़ी लाइन छोड़ देने के और फिर आगे बढ़ने का। जब टाइम मिलेगा तब आके इसको सॉल्व करने का, क्योंकि थोड़ा आधे मार्क के लिए अपने को 2-3 मिनट खा जाएगा, ये तो सेंस नहीं बनता उसको। ओके, लिखते जाओ। हो जाएगा तो बोलो। Done, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. 5 cards are drawn successively with replacement n is equal to 5. 5 cards drawn. What is the probability? Find the probability that all 5 cards are spade. All are spades. दूसरा, only 3 cards are spades. Only 3 are spades. And तीसरा, none is spade. None is spade. अभी स्पेड आने का चांस है, तो प्रोबेबिलिटी स्पेड। अभी एक बात पे, टोटल कार्ड होते हैं 52, जिसमें से स्पेड के कार्ड होते हैं 13, तो 13/52 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड। सो 13/52 दैट इज 1/4, 1 minus p, 1 minus 1/4, दिस इज 3/4। बराबर, थोड़ा बहुत कार्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए। देयर आर 4 कलर के कार्ड्स है, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। रेड में 2 कलर होते हैं, एक हार्ट और एक डायमंड। एक स्पेड, ब्लैक में 2 कलर होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। ये 13 होता है, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। 13 13 13 13, so there are 52 cards total। there are 52 cards drawing any spade card, so there are 13 spade card and total card are 52। drawing any one spade card will get a probability of 13/52, and if we reduce it we can get 1/4। so probability of drawing a spade card is 1/4 and not drawing a spade card is 3/4। easy, ये आ गया तो फिर सब आ गया, समझ लेना। फर्स्ट पार्ट इज ऑल आर स्पेड। ऑल आर स्पेड, ऑल मतलब कितने ड्रॉ कर रहे हैं अपन? 5 ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 5। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 5, 5c5 p, p is 1/4 raised to 5, q 3/4 raised to 5 minus 5 0, 5c5 1, 1/4 raised to 5, 3 anything raised to anything raised to 0 is 1, 1 ka power 1 is 1, 1 ka power 5 is 1, 4 ka power 5, 4 4 16, 16 or 4 64, 256, 1024। correct me if I am wrong, correct me if I am wrong, 1024।
4 का पावर 5, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ट्रैक चेक करो 1024 आता है क्या, प्लीज चेक, प्लीज चेक। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 मतलब x is equal to 3, so p of x is equal to 3, 5c3 1 by 4 raised to 3, 3 by 4 raised to 2, 5 minus 3 2, 5c3 5 into 4, 3 into 2 into 1 by 4 का पावर 3, मतलब अपन इसको क्यूब भी कर लेंगे तो 1 का 4 का क्यूब कितना 64 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बाई 16, ये कट करूंगा ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये गया 3, ये 2 और ये गया 32, 15, 16 इंटू 16 256, 256 आएगा 512, चेक करो चेक करो चेक करो, 15/512, ये दोनों आपको मैंने चेक करने बोला है, हाँ या ना का आंसर देना मेरे को। हो गया, राइट है क्या, ये चेक किया, ये चेक किया, राइट है क्या? हाँ सर। ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड वाला, नन इज स्पेड, इधर लिखता हूँ, नन इज स्पेड, none is spared, that is none मतलब कोई भी नहीं, x is equal to 0, ये आएगा 5c0, anything raised to 0 and this raised to 5, so this will give us the answer, 5c0 is 1, anything 0 is also 1, 3 का power 5, 3 3s are 9, 27, 81, 243, 243 and 4 का पावर कितना था 1024, so this will be reduce हो रहा है क्या, चेक करो, 243 upon 1024, check, done. So we are moving on to question number 5. The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Probability देके रखा है 0.05 के बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 150 दिन के बाद बल्ब फ्यूज हो जाएगा, मतलब बल्ब काम करना बंद कर देगा, तो 0.05 चांस है, बल्ब फ्यूज नहीं होगा 1 minus 0.05 is 0.95. ओके, ये आ गया क्यू, आगे बढ़ते हैं, find the probability that out of 5 such bulbs n is equal to 5, none, not more than one, more than one and at least one will fuse. Okay, पहला पूछा है none, दूसरा पूछा है not more than one, not more
देन 1, तीसरा पूछा है मोर देन 1, मोर देन 1, एंड लास्ट पूछा है एटलीस्ट 1। सो ये तो हो ही गया। फ्यूज होने का चांस है 0.05, फ्यूज नहीं होने का चांस हो गया 0.95। चार चीजें पूछी है। You have been asked 4 sub questions, so we have to solve it one by one. We have all the values now. We have all the values. You have to just substitute in the formula. That's it. और अभी इसमें आपको log लेने के अलावा कोई choice नहीं बचेगा. First is none. None, that is x equals to 0. So we have p of x is equal to 0. N is pi c0. P is 0.05 raised to 0 and 0.95 raised to 5. 1 into, you can write this as 95 upon 100 raised to 5. So 95 upon 100 raised to 5, you can take it log. Log कैसे लोगे तो ये आएगा 5 log of 95 minus log 100. आगे फिर आप सॉल्व कर सकते हो, या 95 का पावर 5 लेके भी 100 रेस्ट टू 5 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाला पार्ट, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, और यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो, नॉट मोर देन 1, that is x is less than equal to 1. So p of x, capital X, less than equal to 1, not more than 1 can be 0 and 1. So first of all, we'll apply the formula for 0. This is here. That is phi C0, 0.05 raised to 0, 0.95 raised to 5. Phi C1, 0.05 raised to 1, 0.95 raised to 4. 1 into 1 into 0.95 raised to 5. Phi C1 will be 5 into 0.05 into 0. 0.95 रेज टू 4 कॉमन निकाल दो, बचेगा 1, नहीं बचेगा 0.95 प्लस 5 5 25, 0.25, दोनों ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.95 रेज टू 4, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 2 12, 1.20। अब इसको भी आप आगे लॉग से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। Yes, write it down. Ask me if you have any doubts.
हो गया? हो गया? हाँ सर. Question number 3, more than one. More than one. That is x greater than 1. एक से ज्यादा, more than one. अभी ध्यान से समझना, इसको हम लोग उल्टा लेंगे. We'll take it as reverse. ये दोनों केस में, थर्ड एंड फोर्थ दोनों केस में will go reverse. 1 से माइनस करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था. We'll use the same concept. So more than 1, that is x greater than 1. So you can write here p of x is equal to x greater than 1. Greater than 1 you can write from 2, 3, 4 and 5. So instead of solving 2, 3, 4 and 5, we can do 1 minus p of 0 and 1. Getting it? P of 0 and 1. This is very easy as compared to all. Adding all 4, we can do easy. Okay, so what we'll do now here, 1 minus we'll do 1 minus 0 and 1. This is easy to understand. Getting it? Or should I explain? Okay, chalo. 0 and 1 will substitute the formula 5c0. 0.05 raised to 0 into 0.95 raised to 5 plus 5c1 0.05 raised to 1 into 0.5. ये अभी अपन ने सॉल्व किया था. ये जो आंसर आया था उसको लिखो, उसको 1 से माइनस कर दो. दैट विल बी योर आंसर. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया. नाउ विल स्टार्ट द फोर्थ वन. Or still if you want to do it, you can say 1 into 0.95 raised to 5, 5.05, 0.95 raised to 4. Again I'll take out 0.95 raised to 4 common. So here it will be 0.95 plus 0.25. So this will be 1 minus 0.95 raised to 4 into 1.2. ये दोनों का जो आंसर आया था पहले, उसको 1 से माइनस करो, आपको ये आंसर आ जाएगा. Not more than 1. सर ब्लैकबोर्ड ब्लर दिख रहा है. Clear? Please mute the mic please. सॉरी सर, गलती से हो. Okay, okay. चलो let's start. आगे वाला. Last is at least one. Last is at least one. At least one is इसका उल्टा, कम से कम एक या एक से ज्यादा. Greater than equal to 1. So now greater than 1 we have to add 1 से लेके 5 तक. So greater than 1, greater than equal to 1, we can add x is equal to 1, x is equal to 2 plus up to x is equal to 5. Now instead of doing so, we will do x is equal to 1 minus x0. 1 minus 5c0
0.05 raised to 0, 0.95 raised to 5. A1 into 0.95 raised to 5. 1 minus 0.95 raised to 5. This will be your answer. Getting it? सर क्लियर दिख क्लियर नहीं दिख रहा? ये भगवान, चलो देखो, देयर मस्ट बी नेटवर्क इशू. So now you have to try 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10 and 11. 5 sums you have to try at your own. नहीं आएगा, you can ask me, I'll solve for you. Don't worry at all. But try to solve, which are on the same concept. Same concept के ऊपर based है, ये आपको आने ही चाहिए. सबसे important है आपको P और Q का वैल्यू ढूंढना, जो आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आ जाएगा. जो ऐसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7. On a multiple choice examination with 3 possible answer of each of the 5 question. 3 possible answers each of the 5 question. What is the probability that candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? अभी मुझे बताओ इसमें P कितना आएगा? P कितना आएगा? N तो अपने को पता चल गया, 5 क्वेश्चन है तो N इज इक्वल टू 5 आ गया. अभी मुझे बताओ 3 पॉसिबल आंसर्स है. 3 पॉसिबल आंसर्स मतलब आंसर आएगा 1/3. P का वैल्यू 1/3, Q का वैल्यू 1 माइनस P और N का वैल्यू 5. ओके. क्वेश्चन नंबर, अच्छा X का वैल्यू 4 और मोर मतलब X इज ग्रेटर देन 4. 4 and 5 दोनों को ऐड कर देना. ओके, लाइकवाइज यू कैन ट्राई. नहीं आएगा तो आई विल डेफिनेटली. सर आपका माइक में Question number 12. X follows binomial distribution n comma p, and if n is equal to 10, ध्यान देना तो बहुत आसान है. If n is equal to 10, n is equal to 10, p is equal to 0.4. Find ex and vx. To find ex and vx, ex मतलब mean और variance. N is equal to 10, p is equal to n is equal to 10, p equals to 0.4. The q is equal to 1 minus p, 1 minus 0.4 will be 0.6. First of all, we have to find out ex, formula n into p. We have to find out vx, formula n into p into q. N is 10 into p 0.4, answer will be 4. N is 10 into 0.4 into 0.6. 10 into 4, 4 6 are 24, 2.4. That's it. Simple. ये सब आते हैं 2 मार्क के लिए. ऐसे सिंपल से सम 2 मार्क के लिए आते हैं. देखो so I'm solving question number 2. We have p is equal to 0.6 given, p is equal to 0.6 and ex is equal to 6. Ex is equal to 6. To find n and variance of x and vx solve. अपने पास ex लेके रखा है. ex is equal to 6. ex का फॉर्मूला n into p is equal to 6. तो n into p is 0.6 upon 6. 6 by 0.6. n is equal to 10.
गेटिंग इट। एंड दूसरा पूछा है Vx n इंटू पी इंटू क्यू। P देके रखा है तो Q मिल जाएगा 1 माइनस P। 1 minus 0.6 will be 0.4. N is 10 into 0.6 into 0.4. 24. Sir is 2.4 अभी। ओके इसका भी मेन क्वेश्चन नंबर 12 का भी थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई करना। मेन क्वेश्चन नंबर 12 का सब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी आप ट्राई करना। SD मतलब रूट ऑफ NPQ ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑल द फॉर्मूलाज एंड यू कैन ट्राई। चलो नहीं आएगा तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके बोलो सर ये नहीं आ रहा है, या आपने सॉल्व किया होगा तो मुझे बोलो, मैं चेक करके आपको हाँ या ना बोल सकता हूँ। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 8। ओके सर कल 0.4 का टेस्ट रहेगा। हाँ वो तो सवाल ही नहीं है। 3.4 का टेस्ट है, मंडे को भी टेस्ट है, ट्यूसडे को भी टेस्ट है। जब तक इंटीग्रेशन 3.6 तक नहीं जाता तब तक टेस्ट रहेगा कंपलसरी, या जब तक इंटीग्रेशन पूरा खत्म नहीं होता तब तक टेस्ट है। सो आई थिंक कल मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन टेस्ट है। सर राइट टॉप पे क्या ट्यूसडे लिखा है? हाँ राइट टॉप पे क्या लिखा है? ये NPQ ऊपर नहीं, ऊपर सर सेकंड, ऊपर Variance सेकंड of x. सेकंड वो नहीं सर, ऊपर जो ना सेकंड लिखा हुआ है ना, Q is equal to 1 minus P. उसके 1 ऊपर। minus 0.6. Given. हाँ सर मेरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसका। हाँ मैं डेरिवेटिव चालू करूंगा फिर इंटीग्रेशन करूंगा। डेरिवेटिव करूंगा मैं अभी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विल बी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ओके 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 चलो बाय बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क Bye, मुझे sir. चाहिए जो भी मैंने हाँ। आज होमवर्क दिया है, दैट होमवर्क यू हैव टू डू।